Today, first I'm telling you the format of cash flow statement. Cash flow statement is also a vertical statement. Vertical means from top to bottom. In which the first item that we write is cash flow from operating activities. Guys, ये बनाइए मत. Stop, please do not do it. Understand this first. तो सबसे पहले out of the three activities, the activity that we present here is operating activities. Means what was the flow of cash, that both inflow and outflow from operating activities that we show here, right? At the end, we finally get to know net cash flow from operating activities. यहाँ पे हम बहुत सारे डिटेल देते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स की, उन सबको हम प्लस माइनस करने के बाद फाइनली हम यहाँ पे पहुंचते हैं एंड में. अगर if from operating activities we have net inflow, because we have both inflow and outflow. So if inflow is more than the outflow, then there is net inflow, right or not? Then we write here net cash flow from operating activities. And we mark it here as small a. This was capital A here, and this is small a, right? If the net amount is negative, means outflow was more, inflow was less. So net is outflow. Then we write net cash used in operating activities. And we mark it like this, A. So either of these two things would be there, either net cash flow or net cash used. This is used in operating activities. Is it clear? What shall be the amount that comes outside? जो अमाउंट है नेट वो आपका बाहर आ जाएगा, राइट? या तो पॉजिटिव में आएगा और या फिर नेगेटिव में आ जाएगा, राइट? Then our next item starts capital B, that is cash flow from investing activities. Here also we show those items which I explained you yesterday, right? उसका कोई sequence नहीं है, कोई भी item ऊपर नीचे आप कर सकते हो, right? At the end, here also we have either net inflow or net outflow. So here we will have either net cash flow from investing activities or net cash used in investing activities, and this would be marked as small b. Am I clear? That will come here. The same way we will have third and last item, that is cash flow from financing activities, capital C. So here also we'll list down all the transactions falling under financing activities which are causing either inflow or outflow of cash. And then at the end, we will write again the same thing, that is net cash flow from financing activities or net cash used
in financing activities. And this would be marked with small c. Am I clear? Then we do the total of these three items. One from here, one from here, and one from here. Right? This amount can be positive, can be negative. Because if negative is more than the positive here out of the three activities, then this would be negative, right? Or it can be positive. So here we write net cash flow from A plus B plus C. And what was A, B, and C? That we have already marked. A is from operating activities, B is from investing, and C is from financing, right? Or net cash used in, and then A plus B plus C. दोनों में से कोई एक चीज आएगी, राइट? तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया, या तो ये पॉजिटिव में आ गया, या फिर ये नेगेटिव में आ गया। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये हमें बैलेंस शीट से मिलता है, राइट? इसका मतलब ये हुआ गाइस कि साल भर में हमने इतना कैश या तो इनफ्लो आया नेट, या फिर साल भर में नेट इतना कैश हमारे यहाँ से चला गया, तीनों एक्टिविटीज का मिला के। अब ईयर के बिगनिंग में कितना था आपका, वो आप इसमें ऐड कर रहे हो, वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी आपकी, उसमें आप इसको ऐड करेंगे कि ईयर के बिगनिंग में कितना था, तो उससे अपने आप आपका ईयर के क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आना चाहिए। उसके लिए हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये समझ में आ रहा है? जो आपने ये आपको ये निकालना है, ये आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ये जो निकाला है इसमें आपने ओपनिंग को ऐड किया, तो अपने आप ये क्लोजिंग आना चाहिए जो बैलेंस शीट में होगा। अगर ये बैलेंस शीट के क्लोजिंग से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने जो अमाउंट डिटरमाइन किया है वो गलत है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का? या नहीं आ रहा है? ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जो आप सबको पता है गाइस, जो आपको कैश फ्लो के क्वेश्चंस में दिया रहेगा। एक बैलेंस शीट दी रहेगी, उसके नोट्स टू अकाउंट्स कुछ दिए रहेंगे, एंड देन यू वुड बी गिवन सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। विद दैट यू हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट?
हेलो। नहीं नहीं है, आज आज नहीं है, कल है हमारी, है ना। हाँ। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है, मैंने बाकी सारे आइटम्स नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखा है। इन दोनों को मिला के ही हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। ये मैं आप लोगों को कल की क्लास में बता चुका हूँ। ये तीनों होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस शीट वाला। इसमें अगर हम करंट इन्वेस्टमेंट ऐड कर दें तो ये होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कौन सा वाला, कैश फ्लो वाला। राइट। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट जो दी हुई है, इसमें पिछले साल के एंड में, मतलब अकाउंटिंग ईयर 22-23 के बिगिनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने थे? 2,01,000 के थे। 12,000 प्लस 189 मिला के ये आप यहाँ लिखेंगे 2,01,000। यहाँ पे आपने जो कैश फ्लो साल भर का निकाला है, जो हुआ वो आपने लिखा हुआ है, तो वो प्लस ये 2,01,000, राइट, मिला के क्लोजिंग वही आना चाहिए जो आपके बैलेंस शीट में यहाँ दिया है। यहाँ क्लोजिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है? 1,89,000। तो ये मिला के 189 यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कैश फ्लो में इस बार कितना कैश का नेट फ्लो हुआ है वो तो आपको यहीं से ही दिख रहा है, बैलेंस शीट से। ईयर के बिगनिंग में कितना था? 2,01,000। ईयर के एंड में कितना हो गया? 1,89,000। कितना हो गया? 12,000 रुपए से आपका कैश कम हो गया है। इसका मतलब साल भर में आपको 12,000 रुपए का आउटफ्लो हुआ है। तो ये 12 नेगेटिव में है आउटफ्लो, प्लस ईयर के बिगिनिंग में 2 लाख एक था, तो ईयर के एंड में अपने आप कितना होना हो गया? 189। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, ये आपका 12,000 अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ गलती की है। ईयर के बिगनिंग में मेरे पास कैश था इतना, साल भर में नेट कैश मेरी जेब से 12,000 चला गया, तो एंड में कितना बचना चाहिए? 2,01,000 माइनस 12, 189। वैसे समझ में आ गया? आप सबको या नहीं आ गया इस? पक्का? दिस इज हाउ वी मेक कैश फ्लो। इट मींस गाइस, the solution of cash flow statement itself can be checked. You yourself can check it. As far as this amount is concerned, जो आपने निकाला है, वो उस अमाउंट को ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से ऐड करने के बाद अपने आप क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, मतलब आपने कहीं गड़बड़ की है। क्लियर? वैसे समझ में आया जो मैंने बोला? लिखिए इसको गाइस फटाफट, ये फॉर्मेट बनाइए। ये आप लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आ गया जितना मैंने समझाया अभी आप सबको, राइट? ओके। नहीं लिखा आप लोगों ने? आई एम सॉरी, हाँ नहीं लिखा है क्या? यहाँ तक ही लिखा है। हाँ, ये यहाँ तक लिख लिया आप सबने, ठीक है, ये लिख। तो गाइस, जो मैंने आप लोगों को कल इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में बताया था, उसके मैं आपको छोटे छोटे से एग्जांपल्स बता रहा हूँ। फिर हम बाद में काफी फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे कैश फ्लो का। राइट।
लिखिए गाइस इतना। ये लिखा आप सबने गाइस? So after this, guys, make the balance sheet. This is not a full-fledged balance sheet, guys, right? I have made only that I've taken only those items which are related to financing and investing activities. Have you made this much?
You all have noted down everything till here, guys, right? Right, Shubh? So, guys, here we have been given machinery. At the beginning of the year, it was 2 lakh 5. At the end of the year, it is 3 lakh 60. Which year? Accounting year 22 23, right? At the beginning of the year, provision for depreciation account has balance of 65, whereas at the end of the year, provision for depreciation account has balance of 135. 2 lakh 5 minus 65 is 140. 360 minus 135 is 225. For building, no provision for depreciation account is maintained. It means the depreciation of building is created to building account itself. At year end, its value is 295. So 295 plus 225 is 520, which is reflecting in our balance sheet. And here 140 plus 230 is 370, which is again reflecting in balance sheet. Am I clear? At the beginning of the year, patents were of 22,000. At the end of the year, they are 18,000. Whereas at the end of the previous year or beginning of the current year, goodwill was of 3,000, but at the end of the year, it is 17,000. 18 plus 17 is 35, 22 plus 3 is 25. 35 and 25 only are reflecting in intangible assets here. 35 and 25, right?
Guys, with this example, I'm trying to explain you many a things because after this also lot many more things are to be explained, right? Now, guys, first tell me how many of you have some idea of depreciation when we make provision for depreciation account? क्लास 11 में था आप लोगों को depreciation. हम्म नहीं नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है आपको? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिजनेस, ये जो कंपनी है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाती है अपने बुक्स में, उसी का बैलेंस आ रहा है ये 135 और 65। इसका क्या मतलब है, जब ये बनाती है कंपनी, ये अकाउंट जब मेंटेन करती है, तो डेप्रिसिएशन के लिए हम जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? डेप्रिसिएशन किसी एसेट पे चार्ज करने के लिए मशीनरी पे हमको डेप्रिसिएशन लगाना है, क्या एंट्री पास करेंगे हम? मशीनरी क्यों डेबिट होगा? मान लीजिए ये अकाउंट नहीं है, जैसे बिल्डिंग में ये अकाउंट नहीं है, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कंपनी ने क्या एंट्री पास की होगी? बिल्डिंग पे जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो क्या एंट्री पास की होगी कंपनी ने? कंपनी ने यहाँ डेप्रिसिएशन लगाया बिल्डिंग पे 32,000 पे, तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए इस कंपनी ने क्या एंट्री पास की होगी? डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? राइट, यही होती है। तो बिल्डिंग को हमने क्या किया? खुद पे हंस रहे हो? बोलिए। तो बिल्डिंग को हमने क्या किया यहाँ पे? क्रेडिट किया, मतलब क्या किया, बढ़ाया या कम किया? तो बिल्डिंग को या किसी एसेट को कम करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उस समय हम एसेट को कम नहीं करते, उसका डेप्रिसिएशन हम इस अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपनी बुक्स में मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम डेप्रिसिएशन लगाते समय एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वो यहाँ पे इस कंपनी में बिल्डिंग के केस में होता है, क्योंकि बिल्डिंग के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आपको बैलेंस यहाँ नहीं दिख रहा है ये। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता हुआ है, जैसे मशीनरी के केस में हो रहा है यहाँ पे, तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाते समय वो मशीनरी को क्रिएट नहीं करेंगे। डेबिट तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को ही करेंगे, लेकिन क्रिएट किसको करेंगे? मशीनरी के बजाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस तरह से उस मशीनरी का सारा डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में क्रिएट होता रहेगा, और हर साल डेप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा इस अकाउंट में जाके। पहले साल का आया 5,000, इस अकाउंट में क्रिएट हो गया। दूसरे साल का फिर 5,000, इस अकाउंट में क्रिएट हो गया। तो अब इस अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 5 + 5 10। तो इस अकाउंट में एसेट का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता रहता है, इसीलिए इस अकाउंट को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये लिखा है यहाँ पे, देखिए, हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, वो मशीनरी जिसकी कॉस्ट 55,000 थी। अब देखिए, जब हमने डेप्रिसिएशन लगाते समय मशीनरी को क्रिएट नहीं किया, तो मशीनरी की वैल्यू हमारी बुक्स में कम हुई क्या? नहीं हुई। तो मशीनरी जो है अपनी बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिखती रहती है जितने पे खरीदा था। कब? जब ये अकाउंट मेंटेन होता है तब। क्योंकि ये अकाउंट जब मेंटेन होता है तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करते हैं, न कि टू मशीनरी करते हैं। तो मशीनरी को हमने क्रिएट नहीं किया, मतलब मशीनरी को कम नहीं किया, तो मशीनरी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिख रही है उसके अकाउंट में। तो ये जो आपको दो वैल्यूज दिख रही है 360 और 2,05,000, ये ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी की, जब खरीदी गई थी तब से, उसमें कोई चेंज नहीं आया। और उनपे टोटल डेप्रिसिएशन 2,05,000 वाली मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2022 तक लगा चुके हैं 65 का,
और 3,60,000 की मशीनरी पे 31 मार्च 2023 तक 1,35 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। ये समझ में आ रहा है? इसीलिए लिखा है यहाँ पे वो मशीनरी जिसकी कॉस्ट मतलब जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 55,000 है, हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, जिसपे अब तक 14,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, अब तक मतलब इस डेट तक, उसको हमने इसी डेट पे 25,000 में बेच दिया है साल भर। 31 जुलाई 2022 को हमने एक मशीनरी बेची जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 55,000। जब वो खरीदी गई थी, कब खरीदी गई थी उसकी हमें डेट नहीं दी है, हमको उसकी जरूरत भी नहीं है। जब वो खरीदी गई थी तो उसकी कॉस्ट थी 55,000। तब से लेके खरीदने से लेके इस डेट तक 31 जुलाई 2022 तक जब हमने उस मशीनरी को बेचा, तब तक उस पे टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है 14,000। मतलब इस 14,000 में 31 जुलाई 2022 तक का सारा डेप्रिसिएशन आ गया जब से उस मशीन को खरीदा था, तब तब से। और ये 14,000 कहाँ किस अकाउंट में पड़ा हुआ है? इस अकाउंट में, राइट। उस मशीन को हमने 25,000 में बेच दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले हम यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है जो हमें कैश फ्लो में काम में आएंगी। उसके लिए आपको वर्किंग नोट्स में दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक होगा मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। ये आपको एग्जाम में भी बनाने पड़ेंगे गाइस, हाँ। आपको फॉर्मेट पता है अकाउंट्स का? लेजर अकाउंट है ये, हाँ। आपको इसमें पूरा फुल फ्लेज लेजर का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं कि डेट पर्टिकुलर्स जेएफ फिर अमाउंट फिर डेट, पर नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ आपको चार कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। इधर देखिए, मतलब बाद में बनाइएगा इस, एक बार समझ लीजिएगा कि ऐसे आपको बहुत बार करना है ये। और हर बार आपको आपके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क दिखे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राइट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी अकाउंट हम किस ईयर के लिए बना रहे हैं? जिस ईयर का हमें कैश फ्लो बनाना है। कैश फ्लो किस साल का बनाना है हमें? 2022-23 का, जिसका हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं यहाँ पे और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, राइट। तो उस ईयर के लिए मशीन उस ईयर के बिगिनिंग में मशीनरी का बैलेंस कितना था बुक्स में, मतलब पिछले साल के एंड में? वो था 2,05,000। कितना है? 2,05,000। और ईयर एंड पे कितना बैलेंस है? नहीं, ईयर एंड पे है 3,60,000। हाँ, ईयर एंड पे मशीनरी अकाउंट का, राइट। कितना है? 360। ये आ रहा है समझ में आप सबको? ये 360 हमने इस साइड लिख दिया क्योंकि आपको पता है कि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इस साइड आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है। ये टोटल का मैंने बना दिया है। अब हम इसमें इंफॉर्मेशन यहाँ से फिल करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और अकाउंट बना रहा हूँ, पहले वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब ईयर के बिगिनिंग में कितना बैलेंस था? किस ईयर के बिगिनिंग में? 22-23 के बिगिनिंग में। मतलब 21-22 के एंड में कितना बैलेंस था? 65। और 22-23 के एंड में कितना बैलेंस है? 135। तो 65 हमने यहाँ लिख दिया और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया। कितना था? 135 ये लिख दिया, करेक्ट। जब भी डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और इस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा यहाँ पे नीचे, राइट। जिस दिन हमने एक एसेट को बेच दिया, उस दिन उसका टोटल डेप्रिसिएशन जितना अब तक लगाया है, इस साल का नहीं, जब से गई थी तब से अब तक जितना लगाया है वो इसी अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो इस अकाउंट से हम उसको निकाल देते हैं। जब डेप्रिसिएशन लगाया तो इस अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट।
जब निकालना हो तो इस अकाउंट को हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे उस एसेट का जो हमने बेच दी है, और इसको यहाँ से निकाल के हम ले जाते हैं मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ लिखते हैं मशीनरी अकाउंट। जो मशीनरी हमने बेची उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना था, 14। तो 14 हमने यहाँ से निकाल दिया, और इस 14 को हम यहाँ लेगा, यहाँ लिखा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 14। बेचा कितने में हमने उसको, वो यहाँ आता है, कैश और बैंक अकाउंट व्हाट्स इट इज। कितने में बेचा है हमने, 25 में, राइट। मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी जिसको बेचा है, 55, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना लगा है, 14। उसकी WDV जिस दिन बेचा वो उस दिन उसकी WDV कितनी हो गई, रिटर्न ऑन वैल्यू, 55 माइनस 14 इज 31। 55 माइनस 14 इज 31, नहीं 41, सॉरी। चलिए 41 लेस सेल वैल्यू, बेचा कितने में, 25 में। तो हमें क्या हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज 16,000। ये समझ में आया आप लोगों को इतना कैलकुलेशन। हमने जितने में बेचा उतने से मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देते, तो ये कर दिया सेल से, राइट। और उस पर अगर लॉस हुआ है तो लॉस भी यहाँ पे क्रेडिट होता है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना लॉस हुआ है हमें, 16,000। ये तो क्लोजिंग बैलेंस था। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 55। ये हो गया हमारा 39, 39 प्लस 16, 55। जब ये मशीनरी खरीदी गई थी तो इस मशीन अकाउंट को हमने किस वैल्यू से डेबिट किया था, 55 से। मतलब 55 से मशीनरी इसके यहाँ पे आई, और 55 से ही क्रेडिट होके बाहर निकल गई। मतलब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो एसेट अकाउंट में एसेट ओरिजिनल कॉस्ट से आती है और ओरिजिनल कॉस्ट से बाहर चली जाती है, क्योंकि उसका सारा डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे चला जाता है। जिस दिन एसेट को बेचा उस दिन उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से निकाल देते हैं, मतलब डेबिट कर देते हैं। और जब डेप्रिसिएशन लगाया जब तक है तब तक इस अकाउंट को हम क्रेडिट करते रहते हैं, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आता है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी आएगा यहाँ पे उन एसेट का जो अभी तक हमने नहीं बेची, और जो बेची उसका भी आएगा, क्योंकि ये तो हमने कब बेची है, 31 जुलाई को। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तो यूज किया है, करेक्ट। पर हमें वो नहीं पता कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी नहीं पता, उसकी भी जरूरत नहीं है। अब हम इसको करेंगे बैलेंस। पहले इस अकाउंट को करेंगे। कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है आपको, डेबिट साइड। सो डेबिट साइड का टोटल है 1,49,000। उसी को हमने यहाँ पे ले लिया। तो 149 माइनस 65 कितना हुआ, 84,000। ये क्या है, ये अकाउंट क्यों क्रिएट होता है, सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए। इस अकाउंट के क्रिएट होने का कोई रीजन ही नहीं है। इसका मतलब जो 184 आया आपके पास, 84,000, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। और ये क्या दिखा रहा है आपको, इस साल हमने टोटल डेप्रिसिएशन जो मशीनरीज पे लगाया है, चाहे जो बेच दी उसको चाहे जो बची उसको, वो है कितना, 84,000। ये समझ में आ गया। ये 84 हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काम में आने वाला है, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। अब आते हैं हम इस अकाउंट को, इसको बैलेंस करते हैं। इसका ये वाला साइड ज्यादा दिख रहा है बजाय कि ये वाले साइड के। यहाँ का टोटल हो रहा है इन तीनों को मिला के था 55, ये है 360, मतलब हो गया 4,15,000। यही हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ डिफरेंस हमारा आ रहा है 2,10,000 का। मशीनरी अकाउंट में अगर डेबिट साइड में डिफरेंस है मतलब क्या होता है, मशीनरी आई है, इसका मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है 2,10,000 से। मशीनरी अकाउंट एसेट अकाउंट डेबिट कब होता है, जब उसको खरीदा गया है। इसका मतलब ये जो है, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है जो हमारा, वो है बैंक, मतलब हमने 2,10,000 की मशीनरी साल भर में खरीदी है। कैश भी हो सकता है, मैंने बैंक लिखा है।
ये समझ में आ रहा है आप लोगों को guys? तो ये 2,10,000 हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा आउटफ्लो बन के। कल मैंने आप लोगों को बताया था, वहां पे आप लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी, ब्रैकेट्स में लिखोगे 2,10,000। फिर एक आइटम लिखोगे सेल ऑफ मशीनरी, ब्रैकेट में लिखोगे 25,000, क्योंकि हमने 25 की मशीनरी बेची है भी है। ऐसे समझ में आ रहा है? तो इस एग्जाम्पल के लिए अभी तक जो हमने किया है उसका कैश फ्लो में यहाँ बना रहे हैं। आपको कुछ नहीं लिखना है अभी है। इससे पहला आ जाएगा हमारा सेल ऑफ मशीनरी, कितना? 25, ये पॉजिटिव में आ गया। फिर आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी, कितना? 2,10,000, जो भी हमने निकाला है मशीनरी अकाउंट से। ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। ये समझ में आया? अच्छा, 25,000 में हमने बेचा, ये तो हमको दिया ही था क्वेश्चन में, और हमने यहाँ से निकाला है 2,000। ये दो जो इन्फॉर्मेशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और डेप्रीसिएशन, ये आपका ऑपरेटिंग में जाने वाली है। क्यों, कैसे, ये हम बाद में समझेंगे। राइट। ये दो डेप्रीसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है और ऑपरेटिंग में जाने वाला है। और ये 2,10,000 और 25, ये हमारा इन्वेस्टिंग का है, वो हमने दिखा दिया है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Good. बनाइए तब वर्किंग नोट्स पहले, सिर्फ आपको मशीन अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है।
इसको भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है तब तक आप भूल जाओ इसको, इसलिए। So one is inflow and one is outflow. So I hope you all have made this and have marked everything, right? Make this provision for depreciation account. Then guys all. Next is building account. So guys, look at here. The balance of opening balance of building given to us is 2 lakh 30 and closing balance is 2 lakh 95, right? So opening balance हमने 230 यहाँ लिख दिया और 295 हमने यहाँ लिख दिया। अभी लिखिएगा मत प्लीज। अब उन्होंने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ड्यूरिंग द ईयर depreciation charge on building was 32,000. Since for building there is no provision for depreciation account, it means जो भी depreciation है building का वो कहाँ जाएगा? building account की credit side में एंट्री होगी depreciation account debit टू building। तो building के credit में आ जाएगा 32,000। हम यहाँ लिखेंगे बाय depreciation account 32, right? credit side का टोटल ज्यादा दिख रहा है, वो हो गया हमारा कितना? 3 लाख 30, 3 लाख 20 एंड 3 लाख 17, 3 लाख 37,000। करेक्ट और नॉट? 290 और 30, 320, 320 और 7 हो गए 327, ठीक है। 327। लेकिन यहाँ पे हमें ओपनिंग दिया सिर्फ 230, इसका मतलब हमने एक बिल्डिंग और परचेज की है 1 लाख, सॉरी 97,000 की। तो ये हमारी एक्टिविटी कौन सी हो गई? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हो गया। और ये डेप्रिसिएशन था हमारा, ये कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में चला जाएगा। आया आप लोगों को समझ में? कैसे नहीं आया? तो कैश फ्लो में हमारा और एक इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ से, दैट इज परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर 97,000। हो गया। किसका? इन्वेस्टिंग वाला काम हमारा हो गया। तो नेट इसका कितना आया? नेट आ रहा है हमारा नेगेटिव में, राइट?
तो इसके लिए हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसको मार्क करेंगे स्मॉल p से। This is how much 25 means 75 means 2 lakh 85 in negative। इसी को हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया और इसी अमाउंट को हमने यहाँ पे लिख दिया आउटर कॉलम में 2 lakh 85। 82, सॉरी, 2 lakh 82,000। क्लियर है गाइस यहाँ तक? इस तरह से हमने नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग निकाल लिया है। अब हमको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, वो हम बाद में करते हैं। पहले आपने इतना लिख लिया है, ठीक है। अभी कैश फ्लो मत बनाइए, कैश फ्लो मत बनाइएगा, अभी वर्किंग नोट्स हमारे चल रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग, हाँ, इन्वेस्टिंग में भी एक चीज और बची है गाइस। अब हमें यहाँ दिया है पेटेंट और गुडविल, ये भी हमारे फिक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है। पेटेंट हमारा क्या हो रहा है, पहले 22,000 था और इस साल के एंड में जाके हो गया 18,000, में से साल भर में 4,000 से कम हो गया। जब भी इंटेंजिबल एसेट कम हो, इसका मतलब उस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया, जिसको हम कहते हैं amortization। जब भी कोई इंटेंजिबल एसेट कम हो और कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हो, then you have to assume that that was amortized। तो ये amortize हुई है कितने से, 4,000 रुपए से। 22 थी, एंड में जाके 18 हो गई, मतलब 4,000 से हमने amortize कर दिया। amortization is as good as depreciation। डेप्रिसिएशन का हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग में जाता है। amortization भी ऑपरेटिंग में जाएगा। तो यहाँ वर्किंग नोट्स में मैं लिख रहा हूँ, आपको अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है patents amortized during the year is equal to 22 minus 18 is equal to 4,000। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। क्लियर है? रुकिए रुकिए रुकिए, जल्दी मत करिएगा, इस जाओगे उसी समय जब मैं बोलूंगा, क्या फायदा जल्दी लिखने का। हम्म। ओके। वैसे हम फाइनेंसिंग का खत्म कर लें, फिर हम क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। लिख लिया, बना लिया आपने बिल्डिंग अकाउंट, मिशिका? ये आपको इंटेंजिबल एसेट्स की कहानी समझ में आई गाइस? जब भी इंटेंजिबल एसेट कम हो रही हो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी उसका, मतलब आपको मानना है कि उसका अमोर्टाइज किया ना, डेप्रिशिएट किया है, और जो भी उसका अमोर्टाइजेशन मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता है। सुन रहे हो सार्थक? और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट बढ़ रही है, पहले कितनी थी 3, अब कितनी हो गई 17, इसका मतलब उसको हमने परचेज किया है। जब भी इंटेंजिबल एसेट बढ़े मतलब हमने परचेज किया है, जब भी कम हो मतलब अमोर्टाइज किया, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हमने साल भर में गुडविल परचेज की है कितने की, 14,000 की। So goodwill purchased during the year is 17 minus 3, that is 14,000। ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो है, क्योंकि आपने खरीद लिया, आपकी जेब से पैसा गया है। इंटेंजिबल एसेट फिक्स एसेट्स होती है, और फिक्स एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदना है बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, हम कल देख चुके हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे आएगा इन्वेस्टिंग में, परचेज ऑफ गुडविल। कितना, 14,000। 14 था ना, 14 है। सो अब जो नेट आपका आउटफ्लो है कैश का, वो है 2,96,000। यहाँ पे भी हो जाएगा 2,96,000। समझ में आया आप लोगों को? मत लिखिए अभी, रुक जाइए थोड़ा सा। ये हो गया, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिंग का एंड हो गया, राइट। अब हम आते हैं फाइनेंसिंग की तरफ। फाइनेंसिंग में हम कौन सी चीज देखते हैं, क्या देखते हैं हम, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड देखते हैं। लाइबिलिटी साइड में फाइनेंसिंग वाली चीजें देखते हैं सारी। तो लाइबिलिटी साइड में जहां से पैसा आ रहा है वो है आपका शेयर कैपिटल, राइट। दूसरा है आपका बोरोइंग्स,
तीसरा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और शेयर कैपिटल, ये तीन जगह से ही पैसा आता है। शेयर कैपिटल की बात करें तो पहले था 150, अभी इस साल के एंड में कितना हो गया 340। साल भर में 2 लाख 90, सॉरी 1 लाख 90 से बढ़ गया। इसका मतलब हमने 1 लाख 90 के शेयर्स इशू किए हैं, तो हाँ बस पैसा आया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपका 6 से 44 हो गया है। मतलब कितने से बढ़ गया, 38,000 से। प्रीमियम प्रीमियम जो बढ़ता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो या तो शेयर्स को इशू करने में बढ़ता है या डिबेंचर्स को इशू करने में बढ़ता है। पर डिबेंचर्स तो हमने इशू नहीं किए बल्कि रिडीम कर दिए हैं। इसका मतलब जो यहाँ 38,000 इंक्रीज हुआ है वो आपको शेयर्स को इशू करने से ही हुआ है, राइट। तो असल में हमें जो नेट पैसा शेयर्स को इशू करके आया है वो वाला है 190 प्लस 38। मतलब 190 के शेयर्स 20% प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, 190 का 20% 38। तो नेट प्रोसीड्स हमारे पास कितनी आई है, 1,58,000। वो हमारा आ जाएगा फाइनेंसिंग में। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को या नहीं आ रहा है? नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 1,90,000 प्लस प्रीमियम 38, दैट इज 2,28,000। समझ में आया सबको? क्या पूछ रहा हूँ मैं आप सबसे? कितना था पहले शेयर कैपिटल? पहले कितना था, अब कितना हो गया? 340, पहले कितना था, 150। और प्रीमियम था 40, अभी 44, और पहले कितना था, 6। ये मिला के हो गया 190 प्लस 38 मीन्स 2,28,000। ये हमारा फेस वैल्यू है, ये हमारा प्रीमियम है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स हमारे 3 लाख के थे, अब कितने के हो गए? मतलब हमने साल भर में डिबेंचर्स रिडीम किए, मतलब पैसा हमारी जेब से गया है। इन डिबेंचर्स में साल भर का इंटरेस्ट कितना है, 8%। ये डिबेंचर्स रिडीम किए गए हैं 31 दिसंबर 2022 को। पहले थे 3 लाख के, अब हो गए 1 लाख के। और रिडम्पशन कब हुआ, 31 दिसंबर 2022 को। तो इस पे इंटरेस्ट भी लगा होगा, डिबेंचर में इंटरेस्ट लगता ही है, और हमने पे भी किया होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स पहले थे 3 लाख के, इंटरेस्ट कितना लगता है, 8%। कितने महीने का लगा, 9 मंथ्स का। उसके बाद 9 मंथ्स के बाद डिबेंचर्स कितने के हो गए, 1 लाख के। तो 1 लाख पे 8% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 1 लाख के 3 महीने तक ही थे, जनवरी फरवरी मार्च। तो कितना हो गया ये हमारा, 24 और 2 और 18, प्लस ये हो गया 8,000, 1/4 मीन्स 2,000 मिला के 20,000। तो साल भर में जो हमने इंटरेस्ट पे किया डिविडेंड्स पे वो कितना है, 20। ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग ही है, राइट। तो फाइनेंसिंग में हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या ऐसा एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ। 2 लाख के हमने डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर जिसका हम वर्किंग नोट बना चुके हैं वो है 20,000। समझ में आएगा इस? तो हमारा एक आइटम और बचता है, वो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ईयर के बिगनिंग में था 15, एंड में हो गया 25, मतलब साल भर में 10,000 का। बोलो भाई साहब, कुछ बोल ही नहीं रहे, आज क्या हो गया, पेट में ठीक है? फिर
नहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। तो सीरियस दिख रहे हो, आगे बैठा दे तो सीरियस हो जाता है ये। बोलो। पीछे एकदम चहल पहल रहती है इसमें, रौनक पूरी। जाओ पीछे जाओ, अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो। हाँ। तो 15 से आपके शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गए 25। मतलब क्या हुआ? लोन लिया है कितने का? 10,000 का, और उन्होंने लोन लिया, मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो या इनफ्लो? इनफ्लो। तो फाइनेंसिंग में एक और आइटम आपका आ जाएगा, दैट इज रेज्ड। कितना? 10। ये इनफ्लो हो गया। बस हो गया हमारा। तो यहाँ पे हो रहा है 2 20, ये हो गया 8 18। 18,000 का हमारा नेट कैश। क्या है, यूज या फ्लो है? फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसी 18 को हम यहाँ पे बाहर दिखा देंगे। हो गया गाइस? समझ में आया आप सबको या नहीं आया? बनाइए इसको। आपको ये लिखना है एक तो पूरा, उसके बाद कैश फ्लो बनाना है, दैट्स इट। आप सबने राइट? अगर इस क्वेश्चन में जो आपको आज जाके घर में देखना है, वैसे तो पूरा ही देखना है, पर ये आप याद से देखिएगा। मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट? वैसे तो एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू, ऑलमोस्ट न्यू। So you should go through the entire question and solution thoroughly, right?